Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine with your family members. Beta, we have already started in last class the first chapter of history, that is nationalism in Europe, and we have discussed till Napoleonic Code, that we have discussed about that painter's painting, Frederick Sorio. Then we have discussed about the French Revolution, some part, and afterward we discussed about the Napoleon, how he became the modernizer of France and how he afterwards he turns to the enemy of the people, or he showed his negative side, how he turned to the dictator of the France. And today we are going to start with the page number 8, that is second portion, the making of nationalism in Europe. But in this first paragraph, first portion, it is not so important from the purpose of questioning or from the purpose of exam, but important for understanding the chapter. How, beta? Here in this first paragraph, don't get confused. Once again, I am saying, if you will read this paragraph now, you will find many names of different kingdoms, different territories, duchies, cantons, and you will confused. कि इतना tough paragraph है, how we will study, how we will learn. No need to learn about this. ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है बेटा कि किस तरीके का सिनेरियो था टिल मिड 18th सेंचुरी यूरोप में, होल यूरोप में किस तरीके का सिनेरियो था, वो ये बस आपको समझाने के लिए दिया गया है. इसमें से कोई किसी तरह का क्वेश्चन नहीं बनता है, तो ये आपको रीड करना है. बेसिकली व्हाट is given in this first paragraph, it is given that till second half of the 18th century. First thing beta, I want to clear that what is 18th century. 18th century की कभी भी हम बात करते हैं ना, तो बेटा from 1701 to 1799, this is 18th century. ठीक है, many students get confused that 18th century means 18 से start होगा. No, this is wrong. 18th century means 1701 से लेके 1799, और यहाँ बात हो रही है till second half of the 18th century means 1750 तक. ठीक है, तो till second half of the 18th century there was no modern states available in the parts of Europe or many parts of different we कह सकते हैं many parts of world. Modern state means जो आज in many state there is a democracy. तो till second half of the 18th century there was no democracy, no proper states were there in Europe. How Europe was divided? Europe was divided into small kingdoms, small duchies, small cantons. Duchies means that part where dukes used to rule. जिन एरियाज में ड्यूक पीपल रूल करते थे उन एरियाज को बोलते थे डचेस. किंगडम्स छोटे छोटे राज्य, कैंटन्स भी छोटे छोटे हम कह सकते हैं एरिया राज्य की तरह होते थे. तो अर्लियर देयर वो मतलब प्रॉपर एक स्टेट नहीं था, प्रॉपर कंट्रीज नहीं थी, जैसे जर्मनी हो, इंडिया हो, इस तरीके के नेम्स नहीं थे, प्रॉपर स्टेट नहीं थी बेटा, बल्कि स्मॉल किंगडम्स थे. और इन स्मॉल किंगडम्स पर अलग अलग मोनार्क, अलग अलग जो डायनेसिटीज, रूलर्स जो कह सकते हैं वो रूल कर रही थी. जैसे कि अपने फ्रांस में पढ़ा था बॉर्बन डायनेसिटी रूल कर रही थी, तो उसी तरह से होल यूरोप में अलग अलग डायनेसिटीज अलग अलग किंगडम से, अलग अलग कैंटन से रूल कर रही थी. डचेस पे ड्यूक्स रूल कर रहे थे. प्रॉपर डेमोक्रेसी, प्रॉपर स्टेट्स के नेम्स नहीं थे. इवन एग्जांपल दे रखा है आपकी बुक में, जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड, ये इन नामों से नहीं जाने जाते थे. दे वर फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉल किंगडम्स दैट वाज रूल्ड बाय डिफरेंट डायनेसिटीज, डिफरेंट rules. ठीक है, one more example is given in your book about Habsburg Empire. The Habsburg Empire was divided into different areas and from different kingdoms. Somewhere there is a Tyrol, somewhere is a Austria, somewhere there is a Sudetenland. means the अलग-अलग जो है लोग जो है रूल कर रहे थे अलग-अलग. तो above all what they want to say, the writer wants to say in the chapter that people were not sharing the common identity, common sense of belonging among themselves. Why they were not sharing? Because they are not sharing a common state. आज हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, तो we all are Indians. तो Indians means हमारी पहचान क्या है, हमारी नेशनलिटी क्या है कि हम इंडियंस हैं. तो हम एक कॉमन चीज शेयर करते हैं कि हम सबका नेशन क्या है, इंडियंस है. तो हमें कॉमननेस की फीलिंग आती है. हमारे जो फीलिंग है हमारी कंट्री की जो है
तरफ देखने को मिलती है। बट उस समय जब कोई कॉमन स्टेट नहीं था, कोई किंगडम नहीं था, तो लोगों में कॉमननेस नहीं थी। अलग अलग लोग जो है अलग अलग राजा के अंदर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पीक करते थे, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर शेयर करते थे, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते थे। उनको ये नहीं था कि भाई ये हमारा स्टेट है, सिर्फ उनकी पहचान राजा तक की थी कि हमारा ये राजा है, और उनमें कुछ भी कॉमन नहीं था। तो कॉमन नहीं था तो उनमें नेशन की फीलिंग नहीं थी बेटा, कलेक्टिवनेस की फीलिंग नहीं थी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं था, कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी, कोई प्रॉपर पहचान नहीं थी। तो दिस वाज द सिनेरियो ऑफ होल यूरोप टिल सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century. Second half of the 18th century means from 51 to 1799. This was the scenario. means तब तक जो है यूरोप में कोई नेशन स्टेट क्रिएट नहीं हुए थे, कोई फीलिंग्स नहीं थी लोगों में, कोई प्रॉपर जो है कह सकते हैं गवर्नमेंट नहीं थी, प्रॉपर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं था, किसी ने वॉइस रेज नहीं करी थी किसी भी चीज के लिए। एंड आफ्टर दैट अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट इमर्ज। तो जब इस तरीके का सिनेरियो था यूरोप में, तो कैसा नेशन स्टेट का जो आइडिया है लोगों के अंदर आया और कैसे नेशन स्टेट्स इमर्ज हुए, तो दैट वी विल सी आफ्टरवर्ड्स। अभी फर्स्ट पैराग्राफ आप इतना ही रीड करना। अब सेकंड हेडिंग हम शुरू कर रहे हैं इसकी, द एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास। Okay students, now the second point, the aristocracy and the middle class. First point we have what we have discussed, that the whole Europe was divided into small cantons, kingdoms and duchies. Means about the and the population was under living under the different kingdoms or different dynasties. So this is about the different dynasties, kingdoms. Means यूरोप का एक जनरल सिनेरियो हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से यूरोप था टिल सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century. अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन की कि किस तरीके के लोग जो थे। तो इन दैट टाइम मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी यूरोप की थी वो पुअर पीपल थे, पीजेंट्री थे। मीन्स नियर बाय 90% पॉपुलेशन इज ऑफ peasants, and remaining 10% जो population थी वो थी aristocracy. Now what is aristocracy? If you remember last year in French Revolution we discussed about the first two states of French Revolution, that is clergy and nobility, the rich section of the society, the relatives of the king, ठीक है, the church fathers, all this comes under the aristocracy class. So the aristocracy class at that time was in Europe was in small in number, means population उनकी कम थी, ठीक है, but they were rich. Peasants population ज़्यादा है but they were poor, और aristocracy population कम है but they are rich. Rich how? They are having big lands, they are landlords, ठीक है, rich landed privileged section, by birth privileges है उनके पास, उनके जो कह सकते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी जो लैंड ट्रांसफर हो रही है, तो इस तरीके से बाय बर्थ प्रिविलेजेस है, दे आर बिग लैंडलॉर्ड्स बट स्मॉल इन नंबर. सेकंड थिंग, स्पीक्स फ्रेंच. मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है, जो ये एरिस्टोक्रेसी क्लास है ना, उस समय फ्रेंच लैंग्वेज बोलना बेटा बहुत ज़्यादा हाई क्लास माना जाता था. इंग्लिश लैंग्वेज बोलना, फ्रेंच लैंग्वेज अगर कोई बोलता था ना तो इसको बहुत ज़्यादा हाई क्लास माना जाता था. तो ये एरिस्टोक्रेसी क्लास क्या थी? दे आर रिच इन नंबर, स्मॉल इन पॉपुलेशन, स्पीक्स फ्रेंच, ठीक है. और अब चाहे ये एरिस्टोक्रेसी क्लास जर्मन में रहती हो, चाहे स्विट्जरलैंड में रहती हो, चाहे प्रूशिया में रहती हो, यूरोप की किसी भी पार्ट में रहती हो, ये आपस में क्या है, एक टाई शेयर करते थे. जर्मन में रहने वाले एरिस्टोक्रेसी क्लास, प्रूशिया में रहने वाले एरिस्टोक्रेसी क्लास, या यूरोप के किसी भी पार्ट में रहने वाले जो एरिस्टोक्रेसी क्लास है ना, दे आर बाइंडेड विद ईच अदर, दे आर टाइड विद ईच अदर. हाउ दे आर टाइड विद ईच अदर? They share common culture, common language, common identities. और ये जो मैरिजेस होती थी इनकी फैमिलीज में, ये एरिस्टोक्रेसी क्लास जो मैरिज करेगी वो एरिस्टोक्रेसी क्लास में ही करेगी, चाहे वो अलग रीजन, अलग स्टेट, अलग कंट्री का हो. तो इस तरीके से अलग अलग रीजनल डाइवर्जन, यूनाइटेड डिस्पाइट द रीजनल डाइवर्सिटी, अलग अलग रीजन में रहने के बाद भी आपस में जुड़े हुए थे. एंड कनेक्टेड विद टाइज ऑफ मैरिजेस, और इनमें आपस में मैरिजेस के थ्रू जो है रिलेशन शेयर होते थे, रिलीजन शेयर करते थे, कॉमन लैंग्वेज स्पीक करते थे. तो ये अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि उस समय यूरोप में किस तरीके की पॉपुलेशन रहती थी. तो 90% पॉपुलेशन इज ऑफ पीजेंट्स, पुअर पीपल, and they were poor, and 10% population is of aristocracy class, they are rich landed people. और अदर क्लास जो धीरे धीरे डेवलप हुई यूरोप में ड्यूरिंग द कह सकते हैं
सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जैसे जैसे इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी, मीन्स न्यू टेक्निक्स टेक्नोलॉजीज आने लगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन का कंसेप्ट आने लगा ना, तो वैसे वैसे जो है पुअर पीपल्स में भी कुछ ऐसे लोग थे जिनकी खुद की जमीनें थी, ठीक है, जो खुद का प्रोडक्शन करते थे, तो धीरे धीरे उनका स्टैंडर्ड, जो अपने लास्ट ईयर बेटा अगर आपको याद हो तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ग्रोइंग मिडिल क्लास पढ़ा था, तो उसमें भी अपन ने पढ़ा था कि थर्ड स्टेट के कुछ लोग जो धीरे धीरे एजुकेटेड होने लगे, जो ओवरसीज ट्रेड करने लगे थ्रू सी रूट थ्रू लैंड रूट, तो वो धीरे धीरे रिच होते चले गए, तो थर्ड स्टेट में भी दो क्लासेस बन गई। तो वही पूरे यूरोप की हालत थी बेटा, सिर्फ फ्रांस की नहीं, होल यूरोप की, कि यूरोप में जो है धीरे धीरे जो है थर्ड स्टेट के वो लोग जो धीरे धीरे ग्रो कर रहे थे, वो ग्रो होने लगे, एजुकेटेड होने लगे, और जैसे जैसे एजुकेटेड होने लगे, ग्रो होने लगे, तो वो क्या करने लगे, प्रिविलेजेस, जो बाय बर्थ प्रिविलेजेस है इन लोगों के पास, उनको अपोज करने लगे कि बाय बर्थ प्रिविलेजेस नहीं होने चाहिए, प्रिविलेजेस जो होने चाहिए वो मेरिट के बेसिस पे होने चाहिए, काबिलियत के हिसाब से होने चाहिए, ठीक है, बाय बर्थ किसी के पास भी प्रिविलेजेस नहीं होने चाहिए। और फिर वो डिमांड करने लगे नेशन स्टेट की। हमने क्या क्वेश्चन पढ़ा कि हाउ डिड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज, तो यहां से आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज हुआ कि व्हेन द पीपल ऑफ यूरोप गेट एजुकेटेड, व्हेन द पीपल ऑफ Europe slowly progress through industrialization, commercialization, there was a development of new class, new middle class, new working class, and when this working class get educated, they understand the difference between right and wrong, started demanding the right things, started demanding or opposing the by birth privileges, they started demanding the nation state, कि हमको किसी राजा किसी किंगडम के अंदर नहीं रहना चाहिए, एक प्रॉपर नेशन बाउंड्रीज चाहिए जिसमें हम कलेक्टिव आइडेंटिटी कॉमननेस शेयर करें, हमें भी मतलब एक फीलिंग चाहिए कि वी आर बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर नेशन, वी आर समथिंग फॉर नेशन, वी आर पार्ट ऑफ नेशन। तो दे स्टार्टेड डिमांडिंग लिबरलिज्म, फाइनली मीन्स दे स्टार्टेड डिमांडिंग फ्रीडम आफ्टर द कह सकते हैं इवेजन ऑफ वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप। नाउ फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? स्टैंड फॉर whom? फॉर न्यू राइजिंग मिडिल क्लास। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आता है, 3 मार्क्स में आता है, 5 मार्क्स में आता है, नोटबुक में आपको करना है। तो आज के होमवर्क में फर्स्ट क्वेश्चन तो आप नोटबुक में करोगे, यहाँ पे दे रखा है पेज 8 पे, ये जो टॉपिक दे रखा है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, ब्लैक जो हेडिंग दे रखी है उसके जस्ट ऊपर एक लाइन है बेटा, हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, ये मैंने बता दिया कि जैसे जैसे मिडिल क्लास डेवलप हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वैसे वैसे जो आइडिया है नेशन स्टेट का इमर्ज हुआ। सेकंड क्वेश्चन जो नोटबुक में आपको करना है, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर whom? फॉर न्यू मिडिल राइजिंग मिडिल क्लास, उनके लिए। व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि दे स्टार्टेड डिमांडिंग लिबरलिज्म, दे स्टार्टेड डिमांडिंग लिबर्टी when they understand the difference between right and wrong, so they started demanding liberty means they want to be free। तो उनके लिए फ्री वर्ड का क्या मायना था, क्या मीनिंग था, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये करना नोटबुक में सेकंड क्वेश्चन। तो इन जनरल अगर हम डिस्कस करें, हम इसको पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्फीयर में अलग अलग डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकली वो क्या लिबर्टी चाहते थे और इकोनॉमिकली वो क्या लिबर्टी चाहते थे। बट पहले हम इन जनरल डिस्कस करेंगे कि इन जनरल उनके लिए जो है लिबर्टी, लिबरल वर्ड का क्या मायने थे। तो इन जनरल लिबरल मीन्स फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ, कि इंडिविजुअली वो फ्री होना चाहते थे, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना था, और जो लॉ था वो चाहे रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे एरिस्टोक्रेसी हो, चाहे पीजेंट्री हो, तो दे वांट इक्वालिटी बिफोर द लॉ। सेकेंड थिंग, गवर्नमेंट ऑफ ऑल बाय कंसेंट, जो गवर्नमेंट बने, दे स्टार्टेड डिमांडिंग गवर्नमेंट, दे डोंट वांट द मोनार्कल पावर अपॉन देम, नाउ दे वांट गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट बाय ऑल कंसेंट, सबकी सहमति से सरकार बननी चाहिए। थर्ड थिंग, कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, they want constitution in Europe, proper constitution, written rules and regulation, written right, plus the government should be representative। आज डेमोक्रेसी में किस तरीके की
की गवर्नमेंट होती है? रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स वी यूज टू इलेक्ट अवर रिप्रेजेंटेटिव ऑन अवर बिहाफ हु विल वर्क ऑन अवर बिहाफ। तो इस तरह की गवर्नमेंट और पार्लियामेंट मीन्स प्रॉपर लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशियल डिवीजन दे वांट। फोर्थ पॉइंट, एंड ऑफ अरिस्टोक्रेसी एंड ऑटोक्रेसी एंड ऑटोक्रेसी वर्ड का मीनिंग पहले आप समझ लो। ऑटोक्रेसी मीन्स जब एब्सोल्यूट रूल होता है। एब्सोल्यूट रूल मीन्स जब किंग जो है जनरल पब्लिक को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं दे। किंग अलोन मोनार्क अपने हाथ में पावर रखे, वो किसी से पावर डिस्ट्रीब्यूट ना करे और जनरल पब्लिक के पास ये भी राइट नहीं हो कि वो किंग के खिलाफ कुछ बोल सके। तो लाइक अ डिक्टेटर जब रूलर बन जाता है ना किंग, तब उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। तो इस ऑटोक्रेसी को वो खत्म करना चाहते थे। प्लस बाय बर्थ जो क्लर्की प्रिविलेजेस थे रिच पीपल्स के, जो लैंडलॉर्ड्स के पास ड्यूज पड़े थे, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट्स थे लैंडलॉर्ड्स के थे, वो सब खत्म करना चाहते थे। एंड फिफ्थ पॉइंट इसका है बेटा इनवॉयलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में है। 90% पॉपुलेशन बिना प्रॉपर्टी के है, तो वो इस चीज को खत्म करना चाहते थे और वो चाहते थे कि सबको जो है प्रॉपर्टी अपनी अपनी प्रॉपर्टी बनाने का राइट होना चाहिए। तो इन जनरल ये सारी चीजें वो यूरोप में चाहते थे इन दी फॉर्म ऑफ लिबरलिज्म, नेशनलिज्म। नेशन से उनकी ये डिमांड थी। अगर हम पर्टिकुलर पॉलिटिकल स्फीयर पे बात करें बेटा कि पॉलिटिकली वो क्या चेंज चाहते थे, तो ये फर्स्ट 4 कॉमन पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि व्हाट आर द पॉलिटिकल व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर न्यू मिडिल क्लास पॉलिटिकली, पर्टिकुलर आ जाए ना, तो पर्टिकुलर में आप क्या करोगे, फर्स्ट पॉइंट तो सेम रहेंगे और एक और फिफ्थ पॉइंट बन जाएगा इक्वलिटी बिफोर लॉ does not necessarily stand for universal suffrage। उस समय लिबरल जो नेशनलिस्ट थे, मिडिल क्लास जो नेशनलिस्ट बन गए थे, वो डिमांड कर रहे थे ये 4 चीजें, प्लस वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज डिमांड नहीं कर रहे थे। यूनिवर्सल सफरेज मीन्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स 1 पर्सन 1 वोट और इक्वल वैल्यू। अगर आपको याद हो बेटा लास्ट ईयर फ्रेंच में हमने पढ़ा था, जब मिडिल क्लास ने वॉइस रेज की तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी थी फ्रांस में, तो उसमें एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स बन गए थे। तो एक्टिव सिटीजन्स कौन थे, जो 25 ईयर्स अबाव है और जो अपने 3 डेज की सैलरी के बराबर जो टैक्स पेयर्स थे, उनको वोटिंग अधिकार मिले थे। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम्स हो रही थी कि यहाँ पे दे डोंट वांट राइट फॉर वुमेन्स, मीन्स काफी लेट तक, काफी सेंचुरीज तक वुमेन्स के बारे में किसी ने बात नहीं की। तो यहाँ पे भी जब पहली बार लिबर्टी की बात हुई, नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई यूरोप में, बट दे डोंट वांट राइट फॉर वुमेन्स। तो वो सिर्फ किसके लिए इक्वलिटी चाहते थे, मेंस लेवल पे। दे डोंट वांट लिबर्टी एंड they don't want universal suffrage means they don't want 1 person 1 vote or equal value। important point है। now at economic sphere further, ये मैंने बताया इन जनरल क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरीके से करोगे, इन पॉइंट्स को भी इंक्लूड करोगे। अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है कि पॉलिटिकल स्फीयर में वो क्या चेंजेस चाहते थे, कैसे लिबर्टी चाहते थे, तो ये 4 पॉइंट प्लस ये 5th पॉइंट ये आप यहाँ से लिखोगे। अब अपन पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक लेवल पे वो किस तरीके से चेंजेस चाहते हैं, वो मैं फर्दर अभी आपको बता रही हूँ। ओके, तो पॉलिटिकल स्फीयर व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि फर्स्ट 4 पॉइंट्स आर सिमिलर एंड 5th पॉइंट आई हैव टोल्ड यू, एंड इन इकोनॉमिक स्फीयर 5th पॉइंट इज सेम, दैट इज इनवॉल्युबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ लिमिटेड हैंड में नहीं होनी चाहिए, सबके पास होनी चाहिए। तो ये इकोनॉमिक स्फीयर का पॉइंट है। फर्दर इकोनॉमिक स्फीयर में पॉइंट्स आ जाएंगे फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या था, कस्टम ड्यूटीज लगती थी, कस्टम बैरियर्स होते थे, एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करने चाहते थे ना, तो बेटा अलग अलग लेवल पे जो है, और कुछ पहले टाइम में जो था ना कि वो रीजन्स थे वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड थे। तो एक एग्जांपल दे रखा है आपका कि अगर कोई जो ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है, गुड्स लेकर मूव कर रहा है हैम्सबर्ग से लेकर न्यूम्सबर्ग तक, एक छोटे एरिया में मूव कर रहा है ना, तो उन एरिया में भी उसको गुड्स लेके मूव करने के लिए 11 ट्रेड बैरियर्स क्रॉस करने पड़ते थे, और हर ट्रेड बैरियर्स पे उसको 5% जो है
जो है कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती थी। तो 100 में से 11 पे 5% मींस 55% तो कहाँ चला गया, उसका कॉस्ट चला गया कस्टम ड्यूटीज में। तो ये ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत ज्यादा लॉस था। और उस समय क्या थी, ग्रोइंग मिडिल क्लास थी, ग्रोइंग वर्किंग क्लास थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी। तो उस समय वो जो ईरा था, वो पीरियड था, उस समय प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो रहा था, मूवमेंट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज बहुत ज्यादा हो रही थी। तो ऐसे में नाउ लिबरलिज्म इकोनॉमिक स्फीयर पे क्या हो गई, मिडिल क्लास लोगों के लिए, वर्किंग क्लासेस के लिए, कि जो एक कंडीशन है, जो मूवमेंट है गुड्स है, वो फ्रीली हो सके। तो यहाँ पे जो है इकोनॉमिक स्फीयर पे लिबरलिज्म के लिए कि फ्री मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और स्टेट ने, गवर्नमेंट ने जो जगह जगह ड्यूटीज लगा रखी है, कस्टम बैरियर्स, उनको कम किए जाएंगे। 11 की जगह 1 और 2 हो जाएंगे तो उनको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगी। फर्दर वहां पे क्या था, वहां पे 30 तरह की अलग अलग बेटा करेंसीज चलती थी। तो एक जगह करेंसी अलग चल रही है, दूसरी जगह करेंसी अलग चल रही है। तो जैसे जैसे ट्रेडर अपने मूवमेंट गुड्स के साथ मूव कर रहा है तो उसको करेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम आती थी। 30 करेंसी को जब मिडिल क्लास ने वॉइस रेज की तो उसको रिड्यूस करके 2 पे ले आया गया। वॉइस कैसे रेज की, थ्रू जॉल्वेरियन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, यहाँ पे दे रखा है पेज नंबर 10 पे। जॉल्वेरियन, व्हाट डू यू मीन बाय जॉल्वेरियन? तो जॉल्वेरियन बेटा एक ट्रेड यूनियन, एक कस्टम यूनियन बनाई थी प्रूशिया में, और जर्मन ने भी उसको एक्सेप्ट किया था। और हम कह सकते हैं प्रूशिया में बनी थी और जर्मन के लोगों ने भी उसको ज्वाइन किया था, उस ट्रेड यूनियन को, ताकि वो जो ये करेंसीज है डिफरेंट और जो ट्रेड बैरियर्स है उनके लिए वॉइस रेज करके उनको रिड्यूस कर सके। एंड फाइनली दे वर सक्सेसफुल। द करेंसीज दैट वाज 30 डिफरेंट टाइप्स करेंसी थी ना बेटा, वो रिड्यूस होके 2 तरह की करेंसीज हो गई। तो जॉल्वेरियन क्या है? इट इज अ ट्रेड यूनियन डिमांड फॉर यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरीज एंड promotion and formation of custom unions. It is formed in Prussia beta. Here it is in, if you will read ना, you will find the answer. Further यहाँ पे क्या था, मेजरमेंट का तरीका भी बेटा अलग अलग था, ठीक है। डिफरेंट तरीके के वेट थे, कहीं पे पत्थरों से वेट हो रहा है, कहीं पे वेट हो रहा है। तो अब ट्रेडर सामान लेके मूव कर रहा है तो कहीं तो उसके सामान का वेट अलग आ रहा है, कहीं अलग आ रहा है। तो इसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी। मेजर्स के तरीके, कपड़ा नापने का तरीका जो था, अभी जैसे अपन मीटर सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं तो उस समय उसको मेजरमेंट को, लेंथ को बोलते थे एलई, ELLE, एलई या एल कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो जो मेजरमेंट का तरीका था, एक प्लेस से थोड़ा आगे मूव करता था। तो वही कपड़ा जो है यहाँ पे आपके एग्जांपल दे रखा है कि फ्रैंकफर्ट में अगर वो मेजर हो रहा है क्लोथ तो वो आ रहा है 54.7 सेंटीमीटर, और वही सेम क्लोथ जब मेंस में मेजर हो रहा है तो वो आ रहा है 55.1 सेंटीमीटर। वही सेम क्लोथ अगर ड्यूम्सबर्ग में मेजर हो रहा है तो वो आ रहा है 65.6 सेंटीमीटर। इस तरीके से एग्जांपल दे रखा है कि मतलब मेजरमेंट, वेट, करेंसी, हर चीज में प्रॉब्लम थी। तो जब उन्होंने वॉइस रेज करना शुरू की न्यू मिडिल क्लास ने, तो इकोनॉमिक स्फीयर में उन्होंने ये चीजें डिमांड करी। तो दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हियर यू हैव टू डू इन द नोटबुक। तो यहाँ पे बेटा इतना ही कवर्ड है। फर्दर जो है हम कह सकते हैं नेशनलिज्म की फीलिंग एक तो इस तरीके से डेवलप हुई जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जब वो एजुकेटेड हुए, when they are becoming the better off section of the society, they understand the difference between right and wrong, they started demanding corrections or liberalism at political and economic sphere. फर्दर जो है नेशनलिज्म पे जब रेलवेज का एक्सपांशन हुआ, रेलवेज का इन्वेंशन हुआ, व्हेन पीपल और ट्रेडर्स स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्विकली, फास्टली, तो आइडियाज ट्रांसफर हुए, फीलिंग्स ट्रांसफर हुई। जो नेशनलिज्म का आइडिया था एक जगह से दूसरी जगह फटाफट पहुंचने लग गया। तो कहीं ना कहीं रेलवेज का भी रोल था फॉर डेवलपिंग द फीलिंग ऑफ लिबरलिज्म, नेशनलिज्म, हमारे ट्रेड को, हमारी मैन्युफैक्चरिंग को, हर चीज से जो है रेलवे ने डेवलप किया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। What happened in 1815 beta? In 1815, if you remember last year, in French Revolution, we discussed about the Napoleon conquering of France. Means after the 5 directors clashed in France, Napoleon came in France and he conquered France and slowly started conquering the other parts of Europe. और अभी भी हमने इस चैप्टर में भी पढ़ा, नेपोलियन के बारे में पढ़ा कि धीरे धीरे नेपोलियन ने पहले फ्रांस को कैप्चर किया, फ्रांस का रूलर बन गया और यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स को जो है जीतता जा रहा था अपनी आर्मी के थ्रू और फ्रांस में मिलाता जा रहा था।
But finally in 1815 नेपोलियन वॉज डिफीटेड एट वाटरलू। वाटरलू में नेपोलियन को डिफीट कर दिया गया। किसने डिफीट किया? ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया और रशिया, जो मेजर पावर्स थी। ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया और रशिया, इन्होंने टाई अप करके चारों कंट्रीज ने जो है नेपोलियन को वाटरलू में 1815 में हरा दिया। और जैसे ही नेपोलियन डिफीटेड हुआ, देन अगेन जो कंजर्वेटिज्म, रशियन रिवॉल्यूशन में लास्ट ईयर अपन ने पढ़ा था, ठीक है, रेडिकल्स, लिबरल और कंजर्वेटिस्ट। कंजर्वेटिस्ट हु वर ऑफ ओल्ड थिंकिंग, ओल्ड विचारधाराओं वाले, ओल्ड ट्रेडिशन, ओल्ड थिंकिंग के जो लोग थे, जो पुरानी चीजों को लेकर चलना चाहते थे, दे आर कॉल्ड एज कंजर्वेटिस्ट और कंजर्वेटिज्म। तो फ्रांस में कौन रूल कर रहा था पहले? लुइस 16 ऑफ बॉर्बन फैमिली, एंड ही वाज वन ऑफ द कंजर्वेटिस्ट, ओल्ड थिंकिंग। तो जब वाटरलू में नेपोलियन हार गया, तो अगेन इन 1815 कंजर्वेटिज्म केम इन होल यूरोप। फ्रांस में वापस बॉर्बन जो है फैमिली को ला दिया गया, और जो नेपोलियन ने फ्रांस में दूसरी कंट्रीज को मिला दिया था, तो बाउंड्रीज वापस से खींची गई, जो एरिया था जिसका उसको वापस दे दिया गया। फ्रांस के चारों तरफ, सपोज ये फ्रांस है, फ्रांस के चारों तरफ स्टेट्स बना दिए गए, और उनके पीछे दूसरे जो कंट्रीज थी, स्टेट बनाने का लॉजिक ये था कि अब अगर फ्रांस से कोई भी जो है दूसरी कंट्रीज को अटैक करने की कोशिश करे, तो पहले वो इन स्टेट से होकर गुजरेगा, और जब इन स्टेट से होकर गुजरेगा तो यहीं पर उनको रोक दिया जाएगा। तो फ्रांस का जो वापस फ्रेमिंग हुई, फ्रांस बॉर्बन फैमिली के पास चला गया, कंजर्वेटिज्म के पास चला गया, और जो नेपोलियन ने टेरिटरीज जबरदस्ती फ्रांस में मिलाई थी जीतकर, वो वापस, ये पैराग्राफ आप रीड करोगे बेटा पेज नंबर 11 वाला, तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा एरिया किस किस को वापस दिया गया। सिर्फ एक जर्मन में जो 39 स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन किया था नेपोलियन ने, जर्मन को अनटच रखा गया। वो जो है उन लोगों को सही लगा, अदर कंट्रीज को, कि ये जो सही है, जो भी फॉर्मेशन है सही हुआ है, इसको जैसे नेपोलियन ने किया है वैसे ही रहने देते हैं, बाकी सारे एरियाज हटाए गए। आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो है अलग अलग एरियाज जो है वापस ज्वाइन कर दिए गए। अब ये कंजर्वेटिस्ट कौन थे बेटा? ये कंजर्वेटिव्स थे ओल्ड थिंकिंग वाले लोग, जो कि ओल्ड सोसाइटीज में रहते थे। बट अब जो है कंजर्वेटिव्स तो वापस आ गए, ठीक है, यूरोप में। बट इस बार उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो मॉडर्न प्रिंसिपल्स के, मैंने कहा था एक तरफ नेपोलियन क्या था? डिक्टेटर था, दूसरी तरफ क्या था? मॉडर्नाइजर्स था। उसने जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे चेंजेस किए थे, जो इतनी सारी करेंसीज थे उनको घटा दिया था, इतने सारे अलग अलग वेट और मेजरमेंट के सिस्टम थे, सारे बदलाव कौन लाया था? कहीं ना कहीं नेपोलियन लाया था ना बेटा। तो ये नेपोलियन के जो मॉडर्न प्रिंसिपल्स थे, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स थे, नाउ दीज कंजर्वेटिव्स डिसाइडेड टू रीस्टोर द ट्रेडिशनल थिंकिंग विद मॉडर्न प्रिंसिपल्स। मॉडर्न थिंकिंग कि जो नेपोलियन ने नई चीजें लाई, उससे उनको था कि ये था कि कहीं ना कहीं इससे हमको बेनिफिट होगा, हमको प्रॉफिट होगा, हमें मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग लेवल पे बेनिफिट होगा, तो हम इन चीजों को भी रहने देते हैं, मॉडर्न प्रिंसिपल्स को भी अडॉप्ट करते हैं। बट जो ओल्ड किंग्स थे, डायनेस्टीज थी, किंगडम्स थे, वो वापस रूल करने आ गए थे होल यूरोप में। अब कौन कौन से एरिया किस किस के साथ जो है ऐड किया गया, तो यहाँ पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है द किंगडम ऑफ नीदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम, बेल्जियम में इंक्लूड किया गया। रशिया वॉज गिवन टू द पोलैंड, और वाइल प्रूशिया वॉज गिवन टू द बिकम द पोर्शन ऑफ सेक्सोनी। तो इस तरीके से ये पैराग्राफ पढ़ने से आपको पता चलेगा कि अलग अलग जो किंगडम्स थे, जो अलग अलग एरिया से वो वापस बाउंड्रीज जो है वापस फॉर्म की गई, ठीक है, और कंजर्वेटिव रूल करने आ गए। अब इस बार जो ये कंजर्वेटिव बेटा रूल करने आए ना, ये ज्यादा ऑटोक्रेटिक फॉर्म में आए। पहले ये ऑटोक्रेटिक नहीं थे। ऑटोक्रेटिक मीन्स पहले वो तानाशाह नहीं थे, वो लोग जो है जनरल पब्लिक को बहुत ज्यादा जो है बोलने से रोकते नहीं थे। इस बार जो ऑटोक्रेटिक है वो क्रूअल फॉर्म में आए, क्योंकि उनको डर था कि अगर हम क्रूअल फॉर्म में नहीं आएंगे तो जनरल पब्लिक वापस उनको अपोज करने लग जाएगी। तो लोगों को दबाने के लिए उन्होंने सबसे पहले क्या इम्पोज किया? सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या होती है? जब जनरल पब्लिक के पास राइट टू स्पीच नहीं हो, राजा के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता, कुछ नहीं लिख सकता, कुछ नहीं छाप सकता है, तो उस सिचुएशन को बोला जाता है सेंसरशिप। तो सबसे पहले वो आते ही उन्होंने क्या कर दिया? सेंसरशिप। अगर कोई भी राजा के खिलाफ कुछ भी बोलेगा तो उसको लिबरल मूव समझा जाएगा और पनिश किया जाएगा। तो दिस टाइम this conservatives after the fall of Napoleon are more autocratic. They recreated the national boundaries, ठीक है। यहाँ पे इस तक आप यही पढ़ोगे।
फर्दर आप ये पढ़ोगे कि चलो नेपोलियन चला गया, नए कंजर्वेटिस्ट आ गए, पर जो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ ना बेटा यूरोप में, जो एक बार वॉइस रेज हुई मिडिल क्लास पीपल की, वर्किंग क्लास पीपल की, वो लोगों के दिलों में रह गई और लोगों ने जो है उस कोशिश को छोड़ा नहीं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि फिर उन्होंने जो है रिवॉल्यूशनरी सीक्रेट सोसाइटीज बनाना शुरू की, जिसके थ्रू उन्होंने जो धीरे धीरे है वॉइस रेज करना शुरू की सीक्रेट सोसाइटीज के थ्रू। ओके बेटा, लास्ट टॉपिक इज द रिवॉल्यूशनरीज। Okay, beta, before starting with the new point, now I forgot to tell you about the Duke Metternich and Vienna Treaty. Now, what was Vienna Treaty? What I have told you that after the defeat of Napoleon, all these countries who defeated Napoleon, they restructure the boundaries of different nation. For restructuring that boundary, now first they held a meeting at Vienna in 1815 after the defeat of Napoleon. All these countries, Britain, Russia, Prussia and Australia's delegates went to one meeting in Vienna, where the meeting was headed or hosted by Australian Chancellor Duke Metternich. तो ड्यूक मेटरनिच से रिलेटेड बेटा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपको नोटबुक में करना है कि हु वाज ड्यूक मेटरनिच। तो ड्यूक मेटरनिच वाज बेटा ऑस्ट्रेलियन वाइस चांसलर हु हेडेड द मीटिंग इन वियना आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन। तो ड्यूक मेटरनिच के अंडर में जो है ये सारा जो कॉन्फेडरेशन है, जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं। अभी ड्यूक मेटरनिच याद रखना बेटा, फर्दर इस टॉपिक में भी आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द ड्यूक मेटरनिच। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज the revolutionaries. Revolutionaries, what happened means after the defeat of Napoleon, when conservatism came back, so they stopped the revolutionaries activities. जो revolutionaries, जो मिडिल क्लास लोग जो वॉइस रेज कर रहे थे, लिबरलिज्म डिमांड कर रहे थे, तो उन पे भी उन्होंने क्या लगा दिया, सेंसरशिप। मीन्स सारी जो गतिविधियां थी उनको बंद कर दिया में। तो ऐसे में रिवॉल्यूशनरीज जो है वो शांत रहने वाले नहीं थे। दे स्टार्टेड फ्रेमिंग द सीक्रेट सोसाइटी, सीक्रेट गतिविधियां स्टार्ट कर दी, क्योंकि उनके अंदर जो फीलिंग थी नेशन स्टेट की वो डेवलप हो चुकी थी, वो अब बंद नहीं हो सकती थी। तो वन ऑफ द रिवॉल्यूशनरी वाज गियुसेपी मैज़िनी। मेन हम गियुसेपी मैज़िनी के बारे में बात करने जा रहे हैं और ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज गियुसेपी मैज़िनी? ही वाज वन ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज। ठीक है, कहाँ बॉर्न हुए थे? इन जेनोवा इन 18। गियुसेपी मैज़िनी वाज बॉर्न इन जेनोवा इन 1807 और फिर वापस 1831 में उनको देश निकाला दे दिया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने लिंगुरी में जो है रिवॉल्यूशंस किए थे। लिंगुरी में रिवॉल्यूशन की वजह से उनको यूरोप में से निकाल दिया गया था। वापस वो सीक्रेटली उन्होंने सोसाइटीज फॉर्म की, अंडरग्राउंड हो गए। ही फॉर्म सीक्रेट सोसाइटीज यंग इटली एंड यंग यूरोप इन बर्मी। बर्मी है स्विट्जरलैंड का एक पार्ट है, उसको बर्मी बोला जाता है। तो उन्होंने ये दोनों सोसाइटीज को लेके किसी भी तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गियुसेपी मैज़िनी कौन थे? ही वाज वन ऑफ द रिवॉल्यूशनरी बॉर्न इन जेनोवा इन 1807, went to sent to exile for revolution in Hungary in 1831. He formed two secret societies, Young Italy and Young यूरोप। तो यंग इटली और यंग यूरोप क्या था? ये दोनों सीक्रेट सोसाइटीज थी जिनको की बनाया था गियुसेपी मैज़िनी ने आफ्टर द रिस्टोरेशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। अब गियुसेपी मैज़िनी का क्या मानना था? ही बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड टू बी नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। अब मैंने आपको कहा याद रखना ड्यूक मेटरनिच क्या सोचते थे गियुसेपी मैज़िनी के बारे में? उनका कहना था कि ही इज द According to Duke Metternich, that Australian Vice Chancellor who headed the meeting at Vienna, Giuseppe Mazzini was the most dangerous enemy of the social order. उस समय सोशल ऑर्डर क्या था? कंजर्वेटिज्म वापस आ गए थे, पुराने जो मोनार्क थे वो वापस आ गए थे और मोनार्क का एनिमी मानते थे। क्यों? क्योंकि ये वॉज वन ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज। तो आज बेटा इतना ही करेंगे और जो क्वेश्चंस मैंने बताए वो तो कर ही लेना, उसके अलावा भी मैं देखती हूँ इवनिंग तक आपको और फर्दर कोई होमवर्क होगा इंपॉर्टेंट, आई विल सेंड यू। थैंक यू।